کہ ان کو شمس و زغال دیا ہے اور بدر تو جال دیا ہے نبی کو اور بدر تو جال دیا ہے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق سب احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے لگی ہوئی ہے. دنیا میں بہت سے لوگ بہت سے مقاصد کے لیے بیٹھتے ہیں. کبھی لوگ بیٹھتے ہیں اپنے گھریلو مسائل کو سلجھانے کے لیے، کبھی لوگ بیٹھتے ہیں شادی بیاہ وغیرہ کے لیے، کبھی اور دیگر امور کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں. لیکن دوست و عزیزوں، اس بیٹھنے پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. لیکن ہم یہاں جو آئے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نجات فرما دیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس لیے جب تک بیٹھے رہیں دوست و عزیزوں، بڑے ہی محتاج بن کر، فقیر بن کر کے، جیسے ایک بھوکے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، ایک پیاسے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ایک ننگے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، ایک بیمار کے لیے علاج کی ضرورت ہے، ایک راہ سے بھٹکے ہوئے کو راہ کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ اس شرور و فتن کے دور میں ہر مسلمان کو اللہ اس کے رسول کی بات سننے کی ضرورت ہے. بے شک. آج دوست و عزیزوں، پہلے تو سینما ہال میں لوگ جاتے تھے اور لائن لگاتے تھے اور ٹکٹ پہلے سے حاصل کرتے تھے. اب تو موبائل کی دنیا میں لوگ رضائی کے نیچے سینما دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں. لڑکی چھت پہ جانے کے بعد دوست و عزیزوں جو بات کرتی ہے وہ کرتی ہے، اسی میں وہ سینما دیکھتی ہے. شہوت کو بھڑکانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر آتی ہیں، اس کے بعد یہ نتیجہ سامنے آتا ہے. آپ اور ایک بات غور کیجئے، حضرت مفتی عبدالوحید صاحب نے تو بہت ہی آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور بیدار کیا. آج کل کے دور میں دیکھا گیا عید کے موقع پر آخری اشرا میں جو کپڑے خریدنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں رہتے عورتوں کو بیچتے ہیں. پوری مارکیٹ عورتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ماں جو ہے نقاب کے ساتھ ہے اور اس کی بالغہ لڑکی جو اس کے ساتھ ہے اس کے سر پر دوپٹہ بھی ہے، اور اس طرح سے فیشن بن گیا ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں. مجھے وہ بات یاد آئی، حاجی رکن الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بہرائچ شہر میں بہت آتے تھے اور انہی کی محنت و ثمرہ تھا کہ ڈاکٹر حسن فیروز صاحب نے یہاں قیام کیا. مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ کے وہ خاص خلیفہ تھے. وہ گورکھپور سے بہرائچ آ رہے تھے تو راستے میں روڈ ویز پر آگے دو عورتیں بیٹھی تھی جو نقاب لگائے ہوئی تھی، لیکن ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور بہت سے نوجوان ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے. کوئی کھڑا ہوتا تھا، کوئی بیٹھ جاتا تھا. تو حاجی رکن الدین صاحب کھڑے ہوئے اسی بھرے مجمع میں اور کہا، بہن ایمان کو تم بدنام کرتی، یہ نقاب تو لگا رکھا ہے، جب چہرہ ہی تیرا کھلا ہوا تھا اور تیرا چہرہ ہی طرح تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے اپنے چہرے کو کھول دیا. مولانا اسامہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے رحمت کی گھٹا برسائے، وہ کہتے تھے کہ شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر اور میک اپ کر کے جاتی ہیں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، میری طرف مائل ہوں. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج شادی بیاہ کے موقع پر پردہ کا کوئی مسئلہ نہیں. کہتے مولانا شادی کا موقع ہے، سوچ لے پورا کر لیں جائے. لیکن آپ غور کریں دوستو جیزو، وہ ہمارے اسلاف، وہ ہمارے بزرگان دین، وہ ہمارے اکابرین جو امت کے لیے راتوں رات روتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ ان کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ان کو اتنا صدمہ ہوا، اتنا غم ہوا کہ جب ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو بجائے پیشاب کے خون نکل گیا اور کہا، اللہ
मैं इतना गिर गया कि मेरे निगाहों के सामने तेरी नाफरमानी की जाए, तेरी बगावत की जाए। और मैं मजीद ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो अपनी लड़कियों की तरफ से मुतमईन हैं, उनको मोबाइल न दी जाए। मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी ने मोबाइल के मौके पर बाद 2-3 महीना तक मोबाइल की मजम्मत को उन्होंने बयान किया। आप दोस्तों जीरो, सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेज के मौके पर और पढ़ाई के मौके पर लोग छोड़ देते हैं कि वो पढ़ने गई है लेकिन वो कहीं और जाता है। इसलिए दोस्तों जीरो, शर्म हया और का जेवर है, ये कंगन और ये सारी पायल ये जेवर नहीं है, हया जेवर है। आप गौर करें, सोचें कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आज नया चांद निकला, तुमने देखा कि नहीं देखा फातिमा? तो कहा अब्बू मैंने चांद नहीं देखा। क्यों? कहा नया चांद था, लोग देख रहे थे, तुमने क्यों नहीं देखा? तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि अब्बू जान, उस चांद पर सबकी निगाहें पड़ी थी, अगर मेरी भी निगाह पड़ जाती तो मेरी हया खत्म हो जाती। आज दोस्तों जीरो, हम और आप गौर करें, फातिमा के नाम लेवा ये औरतें, खदीजा की ये साहिबजादियां आज दोस्तों जीरो हमारे इस्लाम को बदनाम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिदाई मिल्लत मौलाना आसाद मदनी साहब ने फरमाया था दिल्ली के इजलास में कि तुम घर के जिस शोबे से गाफिल हो जाओगे वहीं पर चोर नकब लगाएगा। आज दोस्तों जीरो हम गाफिल हो रहे हैं दीन से, इसलिए जरूरत है इस बात की एक सीरत नबी इस्लाह माशरा के जलसा में उठने से पहले पहले हम अपने जमीन को देखें और बेदार हो जाएं और अपने घर को जन्नत का गहवारा बना दें। आप गौर कीजिए कि कादिसिया के मैदान में 10,000 सहाबा आ रहे थे, बड़े खूबसूरत थे, काफी दिनों से वो घर से निकले हुए थे। दुश्मनों ने पहले ही से मंसूबा बना रखा था और ईसाई औरतों को बारीक चुस्त लिबास पहनाकर दोनों तरफ खड़ा कर दिया था कि तुम ये जब आएंगे तो इनको अपनी तरफ मायल करना और अपनी तरफ फुसलाना, जिना पर मायल करना। लेकिन चश्मे फलक ने वो दिन भी देखे हैं नबी के गुलामों के, जब ये कादिसिया के मैदान की तरफ आने लगे तो उन्होंने सालार ने कहा कि खबरदार खबरदार, ये निगाहें मुस्तफा को देख चुकी हैं, अब कहीं ये निगाह उठने न पाए। मुस्तफा से बढ़कर दुनिया में कौन हसी और दुनिया में कौन जमील। जैसे हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपसे ज्यादा हसीन कभी मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा और आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने जना नहीं। तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने जब ये बात सुनी तो कहा अगर मैं मौजूद होता तो हसन बिन साबित के पैर पकड़ लेता और कहता कि हजरत आप ये कह रहे हैं कि मेरी आंख ने कभी नहीं देखा, बल्कि आप ये कहिए कि किसी आंख ने कभी नहीं देखा, आपसे ज्यादा हसीन उजड़ी। तो कहते हैं सिकस्तादार ने आयत पढ़ी कुल्लुल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ मोमिनों अपनी निगाहों को नीचे रखो। तो कहते हैं जब वहां पर वो लोग आए तो ऐसे जा रहे थे जैसे कोई चीज गुम हो गई। आदमी तलाश करता है, ना इधर देखता ना उधर देखता है, वो आगे देखता है जमीन की तरफ। जब वो लोग आए तो एक औरत ने कहा ये अंधे तो नहीं है जो मुझे देख नहीं रहे हैं, तो दूसरी ने कहा ये अंधे कैसे हो सकते हैं, पूरी दुनिया मेरे हुस्न पर फरेबता है, लोग अपना ईमान देख डालते हैं और मेरी तरफ मायल हो जाते हैं। तो तीसरी औरत ने बात कही कि ये नबी के सच्चे गुलाम, ये नबी के सच्चे गुलाम। आज क्या हमको देखकर ये कहा जा सकता है कि ये नबी के सच्चे गुलाम है? क्या हमको देखकर ये कहा जा सकता है ये नबी का गुलाम आ रहा है? क्या हमको देखकर ये कहा जा सकता है ये नबी का दीवाना आ रहा है? हमारी निगाहें आजाद हैं, जहाँ चाहे देख ले, मेरी जबान आजाद है, जो चाहे बोल दे, मेरे कान आजाद हैं, जो चाहे सुन ले, मेरा दिमाग आजाद है, जो चाहे मंसूबा बना ले, मेरा पैर आजाद है, जहाँ जहाँ चले जाए। लेकिन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में अल्लामा हाली ने कहा भड़कती न थी, खुद ब खुद आग उनकी, शरीयत के कब्जे में थी बाग उनकी। जहाँ कर दिया गर्म गर्म आ गए हो और जहाँ कर दिया नर्म आ गए। वो सहाबा की शान थी दोस्तों जी। तो चौथी औरत ने कहा कि जब नबी के सच्चे गुलाम मर्दों का यह हाल है तो इनकी औरतें की नहीं बाकी सब। पांचवी ने कहा ऐ मोहम्मद के गुलामों, इस नबी ने तुमको हया का सबक दिया है, आओ मेरे पास आओ, हमने इरादा बदल लिया है, तुम्हारी हया को देखकर हमने इरादा बदल लिया है और बढ़ाओ हाथ और हम कलमा पढ़ते हैं।
10,000 सहाबा की हया को देखकर 70 औरतों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया था। आज अगर हमारे अंदर भी हया आ जाए, इल्फत आ जाए, पाकदामनी आ जाए, तकवा आ जाए, तो इसका असर दूसरों पर जाएगा। इसलिए दोस्तों जीरो, नाज़िम जलसा का हुक्म है कि मुख्तसर बात की जाए। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रोए हैं, रातों रात अपने आप में आंसू बहाए हैं। दुनिया में कोई बाप और कोई माँ अपने औलाद के लिए इतना आंसू नहीं बहाया जिस तरह मेरे आका ने आंसू बहाया। अरफात का मैदान हो या मीना की वादी हो या बैतुल्लाह हो या मुज़दलिफा की रात हो, मेरे आका उम्मत के लिए रोते रहे। कभी फातिमा का नाम लेकर नहीं रोए, कभी ज़ैनब का नाम लेकर नहीं रोए, कभी रुकैया का नाम लेकर नहीं रोए, कभी उम्मे कुलसूम का नाम लेकर नहीं रोए। अगर रोए तो उम्मत का नाम लेकर रोए। आप दुनिया में मोहब्बतों को देख लीजिए। माँ बाप की जो मोहब्बत है वो गरज के साथ वाबस्ता है। बाप की मोहब्बत बेटे के साथ गरज के साथ है, और बेटी की मोहब्बत माँ के साथ गरज के साथ है। उस्ताद की मोहब्बत शागिर्द से गरज के साथ है, और मुरीद की मोहब्बत पीर के साथ गरज के साथ वाबस्ता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जात है, वो आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का रफ्ते जिगर है, कि आप देखोगे 2 बजे का रात होगी और मदीने की रात होगी, और ये कह रहा होगा अल्लाहुम्मा रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को माफ कर दीजिए। आपकी कौन गरज थी, आप तो बख्शे बख्शाए थे। लेकिन दोस्तों जीजो, आज ही नबी के नाम लेवा और नबी के गुलामी का दावा करने वाले दोस्तों जीजो, जब मुअज्जिन ये कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ सोने वाले नमाज नींद से बेहतर है, तो कितने लोग हैं जो अपने बिस्तरे पे खड़े रहते हैं, और कितने लोग हैं नौजवान तबका कितना हट्टा कट्टा और सारी चीजें दुनिया में जो है। आज होटल आबाद है, हमारे चौराहे आबाद हैं, हमारी बाजार आबाद है। अगर आबाद नहीं तो हमारी मस्जिदें आबाद नहीं। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा इस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, हमसे प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। हमसे प्यार होता तो तेरी रात रोने में गुजर जाती, मुझसे प्यार होता तेरी रात तहज्जुद में गुजर जाती, मुझसे प्यार होता तिलावत में गुजर जाती, मुझसे प्यार होता तो मेरे सामने हाथ फैलाने में गुजर जाती। वो लोग कहाँ गए कि फजर से पहले जब किसी बस्ती में पहुंच जाइए तो रोने की आवाज आती थी, तिलावत की आवाज आती थी, दरूद शरीफ पढ़ने की आवाज आती थी। और आज अगर किसी बस्ती में फजर से पहले पहुंच जाइए तो पता चलता है कब्रिस्तान में आ गया, कब्रिस्तान में आ गया। कोई रोने वाला नहीं, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। इसलिए दोस्तों जीजो, बात बहुत ज्यादा हो लेकिन अमल ना हो तो बेकार है। इसलिए अमल के लिए थोड़ी बात काफी है। एक सहाबी आते हैं और फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। तो आपने फरमाया तुकीम अस्सलात व तूती ज़कात, तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो अगर साहिब निसाब हो। वो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम ना मैं इस पर ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा। तो आपने फरमाया जिसको जन्नती आदमी देखना हो देख ले। पता चला कि दीन में ज्यादती करना भी जुर्म है और कमी करना भी जुर्म है। इसलिए दोस्तों जीजो, हमारी आपसे दरमंदाना गुजारिश है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु की तालीमात के मुताबिक, आपकी सुन्नतों के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू होंगे, और क़यामत के मैदान में आका का जब सामना होगा तो हम सुरखुरू होंगे। इसलिए दोस्तों जीजो, अल्लामा इक़बाल ने तो ये कह दिया कि ए मेरे अल्लाह, अगर मेरे अमाल खराब हैं तो नबी के सामने छुपा देना। मेरे आका जब देखेंगे तो आपको गम पैदा होगा, मुझको शर्म आएगी। कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मांगी है बैतुल्लाह में अपनी पेशानी को रगड़ कर, और ये कहा है कि हे मेरे अल्लाह, अगर हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, तो क़यामत के मैदान में मुझे अंधा उठाइएगा, और अगर हम आबिद हैं, इताअत करने वाले हैं, तो सुरखुरी के साथ आका का सामना कर दीजिएगा। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं। और आज का नौजवान दोस्तों जीरो मोबाइल की दुनिया में इतना मस्त है कि लोग ये कहते हैं कि इनको जिस तरह चाहो शिकार कर सकते हैं। कहते हैं आर्या समाज का मिशन जब कानपुर पहुंचा और बहुत लोगों को आर्या समाज में दाखिल कर चुका था,
एक दुकानदार नौजवान के पास पहुंचा और आर्या समाज की बात करने लगा। वो खड़ा हो गया और जूता हाथ में लिया और कहा, इतने मार मारूंगा कि तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। ये मेरा हाथ तो तुम्हें आनंद अल्लाह अकबर। मुझे बहका नहीं सकते। तो उन लोगों ने आकर के कारगुजारी में पेश किया कि जिनका ताल्लुक बुजुर्गों से था वहाँ मेरा दौर नहीं चल सका। इसलिए दोस्तों अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, जैसे अपने घर की हिफाजत करते हैं, खेत की हिफाजत करते हैं, मकान की हिफाजत करते हैं, ऐसे अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। ईमान को बचा कर ले जाना ये दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया है। अल्लाह ताला हमको और आपको सबको अमल की तौफीक